Hey guys, welcome back again in MUO Sigma classes. So first of all, I am going to make register API. I am going to create sign up API. So let us start it. So this is okay, and we have to call sign up with email. Copy and paste. We have to do like this. This will make sign up. Okay, and nothing, we can ignore this as of now. Okay, ठीक है. So this is what we have, sign up with email function we have, and under this we will handle our API call. So in the request we will get some important things like email, maybe username, password, the first name, last name, location, maybe let long, and some physical address you will get. So depend upon the requirement. So सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर in this index.js we have this function. We have this function, right? So let me just copy this function. I'll explain you. So just delete this line and paste. Okay, so we have to paste like this. ठीक है? Okay, I think this is we don't need this. We have to just say like this only. And this is the sign up with email. Okay, there's a problem in this. We have to close this. Okay. And now अगर आपको body read करना है, then in the sense index.js के अंदर you have to enable this code also. You have to enable this code and body parts are already installed है. Nothing else in this. Just see कि कुछ error नहीं आनी चाहिए यहाँ पर. Okay, perfect. अब यहाँ पर API controller के अंदर you have this sign up with email API, and this is we are just consoling. We'll check it and we have this user. So क्या है user schema क्या है? So we have to make a model. We have to make a models, right? So सबसे पहले तो मैं एक function basically एक folder create करूँगा models name से, and inside this I'll create सबसे पहले let's say user register करके register.js. सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है. एंड अब यहाँ पर देखिए, पहले इसको ओपन करता हूँ. ये यूजर्स बेसिकली क्या है, एक स्कीमा है. सो दिस इज द नेम. सो लेट मी जस्ट रीनेम लाइक दिस. परफेक्ट रजिस्ट्रेशन. एंड नाउ यू कैन सी वी कैन नेविगेट टू दिस फाइल. सो दिस इज व्हाट वी हैव, जस्ट अ स्कीमा. जस्ट कॉपी दिस एंड आई एक्सप्लेन यू. यहाँ पर यूजर रजिस्टर एंड देन पेस्ट. सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने mongoose यूज किया है. वी हैव यूज mongoose here, so we have to just install the mongoose first. So npm install mongoose, and we can install this bluebird also. So basically in order to access the MongoDB, we are using mongoose here. So we have this schema. So this is what we are creating here. We have the parameter like first name, last name, email, username. अगर आपने वो पैरामीटर यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है एंड अगर आप उसे फ्रंट एंड से भेजते हैं या आप उसे Node.js पे यूज़ करते हैं, देन डेफिनेटली आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड वो आपको एरर देगा. राइट. सो वी हैव टू डिफाइन द स्कीमा फर्स्ट ईयर. हमें बस सिर्फ स्कीमा, उसका टाइप अगर चाहो तो टाइप डिफाइन कर दो एंड डिफॉल्ट में जो वैल्यू देनी है उसको दे सकते हैं. एंड अगर रिक्वायर्ड है तो उसे रिक्वायर्ड में ट्रू डाल सकते हैं वहाँ से. एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा धीमे धीमे. बट अभी के लिए देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि जैसे कि फर्स्ट नेम हम भेजेंगे साइनअप में, तो साइनअप में हमने यहाँ पर क्या कर लिया, न्यू स्कीमा के अंदर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम पास कर देना है, टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, डिफॉल्ट में नथिंग
ऐसे पास कर दिए, ब्लैंक स्ट्रिंग पास कर दिए। तो मंगूस को यहाँ पर क्या किया, रिक्वायर, एंड मंगूस को यहाँ पर यूज़ किया है हम लोगों ने, एंड इसी स्कीमा को हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, एंड इसको हम क्या कर रहे हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन स्कीमा को हम लोग यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, नथिंग एल्स इन दिस। परफेक्ट। एंड यू कैन सी हियर, एंड यहाँ पर अब आप देखोगे वी हैव डन दिस एंड वी हैव दिस यूजर्स, बट अभी आपने यहाँ पर स्कीमा क्रिएट कर दिया, स्कीमा के साथ आप उसमें क्रिएट भी, यूजर क्रिएट भी कर रहे हो। So create is basically like we are adding some entry in the database, but database से कनेक्शन तो लिया ही नहीं। सबसे पहले important था database का कनेक्शन, तो database का कनेक्शन लेना भी एक important है। And here you can see in this project we have this db.js वाली file, just copying this db file and I'm just creating inside my project, so not in this controller, just top पे मैं एक db.js वाली फाइल में आता हूँ और इसके अंदर कोड पुश कर देता हूँ, ये like this। तो ये यू कैन सी लाइक दिस हियर। सो बहुत ही सिंपल सा कोड है, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, db वाली फाइल यहाँ पर क्रिएट कर ली, एंड नाउ वी हैव टू कॉल दिस db। जस्ट आप यहाँ पर देखोगे index.js के अंदर, सो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप रिक्वायर कर रहे हो, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पर रिक्वायर कर लो और यू कैन सी अंडर इन दिस index.js, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू गो इनसाइड दिस index.js, जस्ट रिक्वायर दिस फाइल ओनली, नथिंग एल्स, जस्ट नीड टू रिक्वायर दिस फाइल, नथिंग एल्स। अब एक बार देख लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। mongoose इंस्टॉल हो गया है, जस्ट टाइप node1, हिट एंटर, एंड आई होप कुछ इशू नहीं आएगा। यस, db कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर db.js में देखिए ये एक मैसेज होता है जो कि हम लोगों ने प्रिंट कराया, कंसोल कराया है, एंड इसका मतलब ये है कि db से हमारा कनेक्शन हो गया है। अब जब db से हमारा कनेक्शन हो गया तो वी कैन क्रिएट कैब बुकिंग, और अभी के लिए हम क्या करते हैं, कैब बुकिंग db करके हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सो जैसे ही आपने कनेक्शन लिया तो आपका कैब बुकिंग db क्रिएट हो गया, डेटाबेस कनेक्शन हो गया, डेटाबेस क्रिएट भी हो गया। बट डेटाबेस के अंदर एंट्री सिर्फ हम तब करा पाएंगे जब हम क्रिएट फंक्शन को यूज़ करेंगे, जब बेसिकली इस यूज़र स्कीमा के अंदर हम क्रिएट को यूज़ करेंगे, एंड इसके अंदर जब भी हम डेटा, जो भी हमारे पैरामीटर्स आ रहे हैं रिक्वेस्ट के अंदर, उसे हम पास करेंगे। और ये जो ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, इनको मस्ट है स्कीमा के अंदर डिफाइन करना। ये स्कीमा है यूजर्स की हमारी। ऑलराइट, परफेक्ट। अब एक बार हम सबसे पहले चलते हैं, अब हम यहाँ पर NoSQL बूस्टर के अंदर, एंड इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट है,